और एक और बार धन्यवाद है, हर समय आप लोग मेरे को बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। The way you welcome me makes me feel so very personal that your welcome is not just a ritual, but it is so very personal. It touches me. So thank you very much and God bless you for the warm welcome. और आप लोगों का स्वागत जो है कोई पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से आप लोग सब लोग मुझे स्वागत करते हैं, इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और बहुत-बहुत जो धन्यवाद आप लोगों का स्वागत के लिए। Not only that, at the end of the ministry, the feedback that you all give me encourages me tremendously. Very seldom are people so vocal, but you brothers and sisters are very vocal and your feedback is important. So I appreciate it and I thank God for that. और उतना ही नहीं बल्कि जब संदेश खत्म होने के बाद भी आप सब लोग बहुत खुशी और उल्लास के साथ जो है आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ और उसके साथ-साथ वो सब कुछ जो आप करते हैं, उसके वजह से मैं बहुत प्रोत्साहित हो जाता हूँ। I know how much all of you love me. Particularly Sibir loves me so much that he wanted me yesterday also to minister the word. So I know how much you miss me. So thank you very much for that love. In the name of the Lord, I love you and all of you, and thank you very much for the warm welcome. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आप सब लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत अच्छे से जो स्वागत भी करते हैं, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। I wish to thank Ranjit, BDTI, the Gwalior Brethren Assembly, for the opportunity that you continue to consider me as one who can edify all of us. और मैं भाई रंजीत को और उसके साथ-साथ बीडीटीआई को भी धन्यवादी हूँ कि आप सब लोग मुझे योग्य समझते हैं कि ये परमेश्वर का वचन को शिक्षा देने के लिए। All right, today we will continue our study on the last chapter of Malachi. और आज हमारा अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे और मलाकी का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय को अध्ययन करेंगे। The last chapter of Malachi is 4. और जो मलाकी का पुस्तक जो आखिरी अध्याय है वो है चौथा अध्याय। And we will consider that today and God willing we'll close it today. और हम लोग इस अध्याय को देखेंगे और हो सके तो इस अध्याय को आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। And God willing, from next week onwards, we'll start on a new subject. और प्रभु का इच्छा होगा तो अगले सप्ताह से हम लोग एक नया विषय को लेकर के अध्ययन करेंगे। All right, so first let me share my screen and then I will walk you through the presentation what I have for you. So let me share my screen first. All right, there you go. I hope you can see my screen now. Yes, uncle. It's same. Very good. All right. Okay. I appreciate all of you because even last Sunday, very surprisingly, I had a positive feedback on the presentation too. I think I forget the brother's name. The brother said that I have good, the choice of presentation that I used is good. I sincerely appreciate that feedback. और जो भाई ने आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसके लिए कोई भाई ने मेरा तारीफ की थी, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और ये संकल्प। All right, so this is all not my capability, but God-given capabilities. I'm nothing, as I always tell you. और ये मेरा योग्यता नहीं, मेरा जो कौशलता नहीं, बल्कि ये परमेश्वर ने मुझे ये कौशलता दी है। All right, okay. So I'm going to divide this chapter. This chapter has 6 verses. Malachi chapter 4 has 6 verses. We're going to divide it into 2 portions. और मलाकी का पुस्तक उसका चौथा अध्याय जो है 6 पद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और इस अध्याय को हम लोग 2 भागों में विभाजन करेंगे। I hope you can see my screen, no? Is it clear? Yes, uncle. Same All clear. right. The 2 parts that we're going to do is the first 3 verses and the second 3 verses.
और हम लोग सबसे पहले जो है पहला 3 पदें हैं, उन 3 पदों को एक भाग में और फिर बाकी जो है 4 से 6 जो पदें हैं उसको दूसरे भाग में विभाजन करेंगे। While I will attempt to stop at 8 o'clock, but if I am overshooting the time of 5 or 10 minutes, please bear with me because I want to finish it off today. और मैं हो सके तो फिर 8 बजे तक मैं समाप्त करने के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन हो सके 5 या 10 मिनट मैं ज़्यादा लेता हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा सह लेना। All right. So the first three verses of Malachi chapter 4 deals with the coming day. और पहला जो 3 पदें हैं, चौथा अध्याय का पहला 3 पदें हैं, वो आने वाला दिन के विषय में बताया गया है। And the second three verses from 4 to 6 deals about reconciled families. और दूसरा जो 3 पदें हैं, वो पदें जो है परिवार में कैसा एक मेल-मिलाप से रहना है, Oh. उस विषय के ऊपर चर्चा किया गया है। So once again, we are going to deal with families, but it's a little different from what we dealt with 2, 3 weeks ago about lessons from the life of Job. This is going to be entirely different. और ये जो परिवार हैं, ये परिवार और पिछले समय में हम लोगों ने जिस विषय के ऊपर अध्ययन किया था, वो विषय और अभी वर्तमान का जो परिवार है, ये थोड़ा-सा भिन्न व अलग होने वाला है। All right. Okay. So let's look at the first portion of the first three verses, and that is about the coming day. और आइए हम लोग पहला 3 पदों को हम लोग देखेंगे, वो आने वाला जो दिन है, उस दिन के विषय में। All right. So can one of us read the first three verses, please, and we'll start the first half of the chapter. आइए हम लोग पहला 3 पदों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। All right. Thank you very much, brother. Now, when you read the first verse, you find that it says, "The day cometh." और जब पहला पद को आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है वो दिन आता है। All right. That is what we're going to consider now very shortly, and we move to the second half after we finish this. और सबसे पहले इस पद को हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर बाद में आने वाला जो पदें हैं, उन पदों की ओर हम लोग जाएंगे। All right. So first three verses can be divided into two divisions. और पहला जो 3 पदें हैं, उसको 2 भाग में विभाजन कर सकते हैं। Verse 1 is the first one, which talks about the coming day of judgment that और should bring fear, to those who are mocking God or who have no regard for God. मेरे प्यारो, जो पहला पद है, आने वाला जो न्याय के दिन के विषय में कहता है, जो न्याय का दिन उन लोगों के ऊपर आएगा, जो लोग हैं, उन लोगों के मनों में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है और परमेश्वर की बातों को वे ध्यान नहीं देते हैं। And the second division of this is it should be a matter of great comfort to those who fear God. और जो दूसरा और तीसरा पद में ऐसा लिखा गया है, जो आने वाला ऐसा दिन, न्याय का दिन ऐसा होगा और जो लोग भय मानते हैं, उन लोगों के लिए तसल्ली, शांति और सांत्वना मिलने वाला है। All right. So which means that the coming day, the day of judgment that is coming, when we look at it,
It brings great fear. It should actually bring great fear to those who disregard God, number one. Number two, it should bring great comfort to those who fear God. मेरे प्यारो, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ी एक जो डर आ जाएगा, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से तसल्ली आएगा। All right, so that is how we are going to study this first three verses, and let's dive a little deep into it to understand that. और इस तरीके से हम लोग पहले 3 पदों को अध्ययन करेंगे। आइए इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा-सा गहराई की ओर कूद करके पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। Right, the day is coming, that is for sure. और वो दिन आ रहा है, ये सच्चाई है। Yeah, this is what the Lord is telling the Judeans through the prophet Malachi in verse 1. For behold, the day cometh when the Lord says, for sure it is going to happen. और अब देखिए कि वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वो दिन आता है, और वो दिन जो है कैसे न, जरूर वो दिन आएगा। All right. And then in verse 3, the Lord is preparing for that. In verse 3, the Lord is preparing for that day that is going to come, the day of judgment. और यहाँ पर आप देखिए तीसरा पद में, जो वो दिन, जो न्याय का दिन आ रहा है, उस दिन को परमेश्वर तैयार कर रहा है। You see in the third verse in English, it says that I shall do this. और यहाँ पर आप देखिए, मैं ऐसा करूंगा। All right. So in the first verse, we see that he's saying that behold, the day of judgment is coming for sure. And then in verse 3, he's preparing for the day of the. So the coming of the day of judgment, brothers and sisters, is imminent and it is approaching. मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि वो दिन आ रहा है, और तीसरा पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस दिन को तैयार कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है, वो जरूर आने वाला है। This warning comes from the Lord of hosts 2 times. और ये जो चेतावनी है, ये जो चेतावनी परमेश्वर की ओर से आ रहा है, ये 2 बार परमेश्वर ऐसा चिताता है। Not only that, Malachi mentions about the coming day 4 times in this prophetical book. और ये जो पुस्तक है, जो भविष्यवाणी का पुस्तक है, मलाकी जो है 4 बार आने वाला दिन के विषय में कहता है। Now in chapter 3 and verse 17, can we read that? Chapter 3 and verse 17. और आइए हम लोग तीसरा अध्याय 17 पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। Yeah, that day refers to the day of judgment. Now in chapter 4, we read verse 1 and 3. Read verse 5. There also it is mentioned. देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं That's तुम्हारे पास। Yeah, that Bhayanak din, the dreadful, the great and dreadful day. So, chapter 3, verse 17, chapter 4, verses 1, 3, and 5, 4 times it's mentioned about the coming day of judgment. और जो है मलाकी का पुस्तक में हम लोग जो आने वाला न्याय का दिन है, वो दिन 4 बार जो है यहाँ पर बताया गया है। You must remember that the day of judgment or the day of the Lord was near and it was at hand. That is what we read in the scripture. और मेरे प्यारो, आप समझ लेना इस बात को कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है, वो बहुत करीब है, वो आने ही वाला है। वो ही बात को हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकते हैं। We read about that in the prophetical books, in the other prophetical books in the scripture, in the Old Testament. और इस विषय को हम लोग जो बाकी भविष्यवाणियों का पुस्तक है, उन पुस्तकों में भी इसके विषय में हम अध्ययन कर सकते हैं। On the screen, I've given you the 5 prophetical books where it is mentioned about the day of the Lord or the coming day of judgment. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर अब स्क्रीन में 5 ऐसी जगहें हैं, 5 ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर आने वाला दिन, जो परमेश्वर का न्याय के दिन का विषय में बताया गया है। The day of the Lord is at hand, is what these prophets mention.
मेरे प्यारो, ये जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, वो भविष्यद्वक्ताएं ये कहते हैं कि परमेश्वर का न्याय का दिन आने ही पर है। At hand means it is coming soon. That's what is the meaning. और एट हैंड का मतलब बहुत जल्दी आने वाला है। All right. You see, there I've given you from Obadiah and Joel. This was mentioned by the prophet in the 9th century. और आप देखिए ओबद्याह का पुस्तक जो है उसका और योएल का पुस्तक में हम लोग देखेंगे तो वो जो नोवा ईशा पूर्व में बताया गया है। All right. These references, when I share the notes with you, you can refer it later because of time I'm passing by. The second you find in Isaiah, it is mentioned the day of the Lord or the coming day of judgment. This was in the 8th century, written in the 8th century. और मेरे प्यारो, यदि यशायाह का पुस्तक उसका 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे तो ये जो भविष्यवाणी जो ईशा पूर्व 800 ईस्वी अब्बा ईशा पूर्व में ये बात को लिखी गई है। All right. Now here when we talk about this 9th and 8th century, we're talking about before Christ. और यहाँ पर हम लोग यदि 9वां या 8वां जो शताब्दी की बात करते हैं, ये ईशा पूर्व यीशु मसीह से पहले की बातें। We all know that the Christian calendar is split into 2, BC and AD. और हम लोग जानते हैं जो मसीह जगत में जो कैलेंडर है उसको 2 भाग में विभाजन किया गया है। वो विषय हम लोग देखते हैं कि ईशा पूर्व और ईशा बाद। Yes. Before Christ, meaning before the Lord came into this world to die, and AD means after the death of the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो जो है ईशा पूर्व का मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह से पहले और ईशा बाद मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात। All right. And before Christ, it comes in the descending order. The numerologically, the numbers come in the years come in the descending order. We all know that. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का पहले उसका मतलब क्या है कि जो ऊपर से नीचे की ओर गिना जाता है। All right. And after AD goes in the ascending order, 1, 2, 3, 4, 5 up to that way. और जो है ईशा बाद का मतलब जो है पहले से लेकर के ऊपर तक चढ़ा जाता है। All right. And so we also find the day of the Lord or the day of judgment coming in Zephaniah, and that was mentioned written in the 7th century. और सिफनिया का पुस्तक यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आने वाला दिन व न्याय का दिन के विषय में हम लोग पढ़ें तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो 7वां ईशा पूर्व में लिखा गया था। And again, we find the day of judgment or the day of the Lord coming in Ezekiel, and that's in the 6th century. और एजेकियल का पुस्तक यदि हम लोग पढ़ते हैं तो आने वाला न्याय का दिन वो 6वां ईशा पूर्व में लिखा गया था। And again in Malachi, we read it. Now, in all these prophetical books, it mentions that the day of the Lord is at hand. It is near, it is coming. सो मेरे प्यारो, ये सब विषय को सब जो भविष्यवाणियों का पुस्तक को यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आने वाला दिन है परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत करीब है। All right. In 2 Peter, let's read 2 verses in 2 Peter, chapter 3, verses 3 and 4. 2 Peter 3, 3 and 4. आइए हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और 3रा और 4था पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। Where is the promise of his coming? That is what people will keep asking. People will say, we all know that very well, isn't it? सो मेरे प्यारो, इस बातों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आने का जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन कहाँ है, इस विषय को सब लोग पूछेंगे। The people who are supposed to dread it will say, you all keep saying that he's coming. When is he going to come? He's not come for so many years, for so many centuries. Right from the old prophetical time, he's not come. So when is he really going to come? और बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे, हाँ हाँ तुम तो ऐसे ही कहते हुए आ रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन कब आएगा? But brothers and sisters, this is a biblical warning, and through Malachi,
the Lord is once again reminding us that the day of the Lord or the day of judgment is imminent and it is coming and it is coming soon. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में बताया गया है और मलाकी के जरिए जो है आपको और मुझे चिताया जा रहा है कि परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत करीब। Just because it's delayed, it does not mean that it will not happen. Brothers and sisters, this day is coming. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये नहीं समझना कि लेट हो गई, बस देरी हो जाती है न्याय का दिन, उसका मतलब कभी नहीं आएगा। जरूर वो न्याय का दिन आने पर है। And particularly the day is coming, but for those with awful terror, for those who make fun of God, who do not love God, who disrespect God, it's coming with great terror. सो मेरे प्यारो, जो लोग ऐसे कि परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते, आने वाली बातों को व परमेश्वर का न्याय का दिन के विषय को सुन करके ठट्टे में मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, परमेश्वर की भय नहीं मानते, भयानक तरीके से उन लोगों के लिए वो न्याय का दिन आ रहा है। All right. So the first aspect of the first three verses is the ones who have to fear the day of the Lord, they have to fear the ones who are making fun of God. That's what is the first verse that is mentioning. सो मेरे प्यारो, पहला पद में हम लोग देखते हैं, पहला 3 पदों में, जो लोग प्रभु को व परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, उन लोगों को डरना पड़ेगा। All right. Now in the second two verses, verses 2 and verses 3, it talks about a great comfort to those who fear God. और आप यदि देखेंगे जो है अगला पदों को, तो जो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए बहुत ही शांति और तसल्ली देने वाली These two बातें वहां verses पर are बताई गई। verses, these two verses are verses of great encouragement to those who fear and love God. और ये जो दोनों पदे हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली विषय और इन दोनों पदों में लिखी गई है। And then in these verses, very significantly, it mentions about the Son of Righteousness. और इन दोनों पदों को यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वहां पर जो है The Son सन of Righteousness, that is in verse 2, no? Sibir, verse 2. The Son of Righteousness arises with healing in ओके his ओके, wings. यस अंकल, यस, थैंक यू। तो धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। All right. Now, the Son of Righteousness, it spells blessing to those who love and fear God. सो मेरे प्यारो, ये जो सूर्य उदय होगा, बात धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसका मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे आशीषें आएगी। So the first one you see there, as you can see my cursor on the screen, the first one, it brings light to darkness. That is the blessing of salvation. सो मेरे प्यारो, जो है पहला जो आशीष ये है, जो व्यक्तियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आता है, वो है उद्धार। Yes, the moment you trust in the Lord Jesus Christ, it brings you into the act of salvation, and it grows brighter and brighter as you move and progress in your life with Jesus Christ. सो मेरे प्यारो, जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसी दिन आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश के ओर आप बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जितना ही प्रभु यीशु मसीह के करीब होते जाते हैं, उतना ही आपके जीवन में जो प्रकाश बढ़ते जाता है। So the Son of Righteousness, the first blessing is that it's the blessing of bringing light into darkness. सो मेरे प्यारो, धार्मिकता का सूर्य उदय होना, उसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश के ओर आगे बढ़ना, वही पहला आशीष है। Outside Lord Jesus Christ, people still live in darkness. सो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के बगैर जो लोग हैं, वे लोग अंधकार में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। The second blessing, that the Son of Righteousness, the rising of the Son of Righteousness, means healing to those who are deceased and who are broken in their heart. सो मेरे प्यारो, जो सूर्य उदय होना, मतलब धार्मिकता का सूर्य उदय होने का मतलब दूसरा आशीष ये है कि उनके जीवन में जो जिसका हृदय टूटा पड़ा हुआ है, जिसका जीवन में बीमारियां हैं, उसके जीवन में चंगाई आता है।
All right. So the Son of Righteousness, to clarify that we all know, let me reiterate, it is a pointer to Jesus Christ. सो मेरे प्यारो, एक और बार मैं आप लोगों को दोहरा करके बता दूं कि ये धार्मिकता का सूर्य उदय होना, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के और ये दिशा निर्देश करता है। It's mentioned here, the Son of Righteousness arise with healing in its wings. The warm rays that come from the sun refers to the righteousness that the Lord Jesus Christ brings in healing and restoring those who are broken-hearted. सो मेरे प्यारो, आप देखिए, और उसकी किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे और फांदोगे। उसका मतलब क्या है कि आप आगे के और जो है स्वस्थता के और उस किरण जो है आपके जीवन में प्रकाशमय होगा। All right, very good. The third blessing that the Son of Righteousness brings, it brings comfort and hope to those who are despair. Despair means those who have lost all hope in life. सो मेरे प्यारो, जो तीसरी विषय ये है कि जो लोग निराशा में हैं, उन लोगों के जीवन में जो है तसल्ली और शांति आता है। The next stage of despair is when people are driven to commit suicide. मेरे प्यारो, जो निराशा जीवन जीना, उसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में हताश और निराश में होने के बाद वे अपना जीवन को नष्ट करने पर रहते हैं, व आत्महत्या करने पर रहते हैं। So the Son of Righteousness of the Lord Jesus Christ brings wonderful hope of eternal life to everyone who believes in him. मेरे प्यारो, जो धार्मिकता का सूर्य उदय होना, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति है, उसके जीवन में जितना निराशा क्यों ना हो, उसके जीवन में शांति और तसल्ली मिलती है। All right. Then the fourth blessing that the Son of Righteousness brings is that he brings joy where there is sadness. और मेरे प्यारो, इस विषय को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में खुश होना व आनंदित होने का मतलब ये होता है कि उसके जीवन में क्या आता है, आनंद आता है। And finally, the last blessing that comes out of the Son of Righteousness, that he makes every wrong to be corrected into right things for all of us. और मेरे प्यारो, जो पांचवा आशीष हैं, वो आशीष ये हैं कि जितने गलतियां क्यों ना हो, उन गलतियों से वो छुड़ा करके सही और सीधे मार्ग में वो ले जाता है। Brothers and sisters, these are the 5 blessings which the Son of Righteousness brings into the life of every believer. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धार्मिकता का सूर्य जो है आपके और मेरे जीवन में ऐसे 5 आशीषें लेकर के आता है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। In other words, the Lord Jesus Christ, when he comes to live in your heart and my heart, in the life of a believer, he makes all these things come to pass. सो मेरे प्यारो, जो प्यारे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास करते हैं, उनके जीवन में जो है ये 5 आशीषें उसके जीवन में आता है। I firmly believe, brothers and sisters, is that this happens in our present day lives. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वास करता हूं, ये 5 आशीषें वर्तमान में भी हम अनुभव कर सकते हैं। First of all, he brings light into darkness, which is the work of salvation. मेरे प्यारो, सबसे पहले जो है अंधकार से ज्योति में ले आता है, वो है उद्धार का कार्य। Second, he brings healing to those who are sick and those who are of broken heart. दूसरा जो है, जो व्यक्ति टूटे मन वाले हैं, उनके जीवन में शांति और उसके साथ साथ चंगाई लेकर के आते हैं। Yes, and the third one is he brings comfort to those who have lost all hope. और जो लोग निराशा में हैं, अपना आशा ही खो बैठे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शांति और तसल्ली ले आते हैं। And the fourth is that he brings joy to those who are sad. और मेरे प्यारो, जो दुख और निराशा में हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आनंद और खुशी ले आते हैं। And fifth blessing is that he makes every wrong thing to be right in the life of a believer. और मेरे प्यारो, जो गलतियां हैं कि विश्वासी के जीवन में वो सही और सीधे मार्ग में ले चलता है, वो है 5वां आशीष।
Hallelujah. What a wonderful Savior we have, is it not? ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे पास कितना महान उद्धार करता है कि नहीं? Brothers and sisters, what more do we want when we have the Lord as our Savior? मेरे प्यारो, आपको और मुझे क्या और चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है? When we look at the Son of Righteousness or the Lord Jesus Christ rising up in our life, in your life, in my life, it pervades our whole life, gives us everything that we want to live in this world. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धार्मिकता का सूर्य जो प्रभु यीशु मसीह है, आपके और मेरे जीवन में, ये भ्रष्ट संसार में एक सूर्य का किरण के समान आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमकते हैं। Brothers and sisters, I feel like saying so many things here, but I'm controlling myself and containing because of time. But I trust when you read the notes, when I send it to you, take time to meditate on this. The Lord will reveal great things as encouragement for you when you meditate on this. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को कहने का बहुत कुछ है, लेकिन समय जो है समय की अभाव के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन ये जो नोट्स आएगा, तो इस नोट्स को आप गहराई से ध्यान करिए, परमेश्वर का वचन को आप मनन करिए। प्रभु जो है बहुत सारे ऐसे रहस्यमय बातें, गहराई विषय जो है आपको उजागर करेगा। All that I want to tell you, brothers and sisters, is as a believer, all these blessings are ours. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक ही एक बात को कहना चाहता हूं, ये सब आशीषें, ये सब हमारे लिए हैं। All right. So this is the message that we have in the first 3 verses of Malachi chapter 4. और मेरे प्यारो, ये 3 जो पदों में हम लोग यही संदेश को पा सकते हैं। All right. Now let's move to the second part of Malachi chapter 4, which is verses 4 to 6. और आइए हम लोग जो है दूसरे भाग की ओर जाते हैं, वो है चौथा पद से लेकर के 6वां पद तक। The first 3 verses, the heading is the day of judgment or the day of the Lord. और सबसे पहला विषय हम लोग जो है देख रहे थे, उस विषय का जो सिर नाम था वो है न्याय का दिन, व परमेश्वर का न्याय का दिन। Or in other words, the day of the Lord, or the coming day. That's what I said earlier. और दूसरी बातों में, दूसरे भाषा में बोला जाए तो जो आने वाला न्याय का दिन। All right. Okay. Now the second one is verses 4 to 6 is reconciled families. और दूसरा विषय को हम लोग देखने वाले हैं, वो जो परिवारों के बीच में मेल मिला। You will agree with me that families are the building blocks of our church and the society. आप सब लोग मेरे साथ सहमति होंगे कि हमारे जो परिवार हैं, ये एक जो है एक मकान व एक घर व एक जो है समाज या कलीसिया बनाने के लिए एक एक कोने का पत्थर के समान है। Now, what is the church made up of? मेरे प्यारो, कलीसिया किसके द्वारा बनी हुई है? I want to ask you a question. It's a very simple question, but let me ask you this question. I want some answers. What is the church made up of? सो मेरे प्यारो, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिए कि कलीसिया किससे बना हुआ है? जवाब दीजिए। Those who believe in God. Those who believe in God. In other words, you're talking about people, right? So Yes. every believer makes a church. It's not the building, it's the families, it's the individuals that make a church, is it not? सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि ये जो एक बिल्डिंग हमें चर्च नहीं बनाता, बल्कि हर एक व्यक्ति व व्यक्ति विशेष जो है कलीसिया को स्थापना करता है। And so a church has smaller units as families, and it's so vital and important for the success of a church is that the family has to be successful. सो मेरे प्यारो, ये जो हर एक व्यक्ति व हर एक विश्वासी के द्वारा कलीसिया बनता है, और ये कलीसिया हर एक विश्वासी कैसा होता है ना, उसमें परिवार जुड़े हुए रहते हैं। हर एक परिवार जो है कलीसिया बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। Beyond the church, it is the society, the family, the beyond the 1 minute. I think it went back. All right. So
beyond the church, it is the society that gets impacted by a family. और मेरे प्यारो, कलीसिया के अलावा हमारा जो समाज है, वो समाज भी एक परिवार के द्वारा प्रभावित होता है। A society is a reflection of the type of families that exist in a society. सो मेरे प्यारो, एक समाज किस तरीके से पारदर्शित होता है ना, परिवारों के द्वारा ही एक समाज लोगों के सामने जो है पारदर्शित होता है। As much as a church is made up of smaller units called the family, similarly, the society is also made up of many, many families. सो मेरे प्यारो, जैसे कि ये कलीसिया एक परिवारों के द्वारा जुड़ करके जो है लोगों के सामने प्रदर्शित होता है, वैसे ही परिवारों से मिल करके ही एक समाज भी उभर करके आता है। And so, brothers and sisters, it is very, very important for us to follow God's direction in our lives. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर की दिशा निर्देश को हमारे जीवन में अनुकरण करना है। In Malachi chapter 4 and verses 4 to 6, the focus appears to be on families and how families have to be reconciled within themselves. सो मेरे प्यारो, यदि चौथा पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो एक परिवार, कैसा परिवार होना चाहिए और परिवारों के बीच में भी कैसे मेल मिलाप से रहना चाहिए। All right. Now, if you consider the progression in a family, which is progression, which is step 1, step 2, step 3, as it moves up, you see the progression in the life of a family, and God's and the godliness or God-fearing aspect in the family, they are correlated very closely. सो मेरे प्यारो, एक परिवार को यदि आप देखेंगे, वो परिवार क्या होता है ना, दिन ब दिन वो परिवार बढ़ता है। वैसे ही जो है उस परिवार में जब परमेश्वर की भक्ति या भय को देखेंगे तो बढ़ने का और परमेश्वर की भक्ति दोनों एक दूसरे के साथ जो है जुड़ा हुआ है। All right. Now, if you see alienation means moving away from God or God's word. That's the meaning of alienation. और आप यदि देखेंगे, परमेश्वर से रहित हो जाना व परमेश्वर से दूर हो जाना। All right. Now you read verse 4, chapter 4 of Malachi and verse 4. Let's read that verse 4. मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। All right. So the Lord is speaking specifically. Remember the law of Moses, which I commanded you to keep. सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा गया है कि मूसा का जो व्यवस्था है, मूसा का जो विधि और नियमों को वो पालन करने के लिए याद रखना। When one person in the family moves away from the word of God, moves away from obeying or heeding to the word of God, that is when the alienation or separation or moving away from God starts occurring. That is the first stage. सो मेरे प्यारो, क्या होता है जब परमेश्वर की वचन को हम नहीं करते हैं, तो वो परिवार जो है क्या होता है, परमेश्वर से वो व्यक्तिगत रूप से वो दूर हो जाता है। और वही पहला जो पहल है जो परमेश्वर से दूर होने का। Yeah, that's the personal alienation. और वो है व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से दूर होना। That results in a family alienation. Read verse 6 and the first half of verse 6. और छठवां पद में हम लोग देखेंगे तो वह क्या होता है ना, एक परिवार के रूप में भी वो अलग हो जाता है। छठवां पद में ऐसा लिखा गया है, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और उनके पुत्र के मन उनके माता पिता के ओर से फेरेगा। Yes. So the second progression is when one person moves away from the word of God, moves away from keeping and obeying the word of God, it reflects in the family. And then you find the family alienation here, the fathers against the sons and the sons against the father. See how it progresses into a family alienation or moving away.
मेरे प्यारो, आप देखिए, एक व्यक्तिगत रूप से जब हम परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो वो अलग तो हो गया, लेकिन क्या होता है ना, परमेश्वर का जो वचन को पालन नहीं करने से वो पारिवारिक रूप से भी परमेश्वर से वो अलग हो जाता है। And then देखिए, you, माता-पिता और yeah, उसके साथ-साथ बेटा, बेटा माता-पिता के खिलाफ हो जाता है। and then you see that progresses, so that leads to the next one is the society or the national deterioration. Verse 6 and the second half of that verse, read that and you will understand it. और आप देखिए, छठवां पद का यदि आखिरी हिस्सा को यदि हम लोग देखेंगे, तो क्या होता है, परिवार से तो दूर हो गया, उसके साथ-साथ हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उससे भी हम लोग जो है अलग हो जाते हैं। Let's read that second half. ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। Lest I come and smite the earth with a curse. और यहाँ पर ऐसा होता है कि आकर के मैं पृथ्वी को सत्यानाश कर डालूं। You see, first it is an individual separating from God because of not keeping the word. That leads to a family separation. Then that leads to a societal or that leads to a national separation from God. You see the progression happening there. और मेरे प्यारो, आप इस प्रगति को देखिए, वो प्रगति कैसा है ना, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से अलग हो जाना, पारिवारिक रूप से परमेश्वर से अलग होना, और उसके साथ साथ एक देश के रूप से भी परमेश्वर से अलग हो जाने के विषय में हम लोग देख सकते हैं। Okay, so now a question to the audience, no, question to those of you who are hearing is, what is the root cause for a fractured family? मेरे प्यारो, जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, मेरे जो वचन को सुनने वाले भाई और बहनों, एक परिवार के बीच में जो एक परिवार कैसे किस रीति से टूटता है, कारण क्या है, आप बताइए। Whatever you feel is right, you can mention it. आप लोगों को जो अच्छा मतलब ऐसा लगता है सही है परिवार टूटने का, वो आप बता सकते हैं। The root cause for a fractured family. Why is the family disintegrating? और एक परिवार कैसे टूट जाता है, एक परिवार कैसे बिखर जाता है, उसका कारण क्या है, बताइए। Any answers? What you feel is right? जो सही लगता है आप लोग जवाब दे सकते हैं। All of you are experienced people, family people, isn't it? Here, आप सब लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। you all know the word very well, so there's nothing like right or wrong. We're just learning the word together. What would be the root cause for a fractured family? Hello. Lack of love. Lack of love. Very good. Disobedience towards Lord. Word. Say that again, brother. Disobedience towards Disobedience. God's word. Very good. Very good. Disobedience, lack of love, disobedience. What else? Good answers. Lack of love, disobedience. Very good. Okay, I think that's good enough, which I think you came to the point there. So we're going to now look at what are the root causes for fractured families. Why should there be a disintegration, or why should a family be separated from God and thereby leading to catastrophe? सो मेरे प्यारो, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलो हम लोग वहीं से शुरू कर लेते हैं कि एक परिवार जो है कैसा टूट जाता है और एक बहुत बड़ा सत्यानाश की ओर वो जाता है। All right, listen to me carefully. The reason for a fractured family, the root cause is forgetting the word of God, disobeying the word, which leads to sin. सो मेरे प्यारो, एक परिवार कैसा टूट जाता है, वो टूटने का कारण ये है कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का वचन को भूल जाना, परमेश्वर की वचन को जो है अनाज्ञाकारी होना, और वो सब क्या होता है ना, हमें पाप करने की ओर आगे बढ़ाता है। A family goes away from God or alienates from God when that family forgets and disobeys God's word. सो मेरे प्यारो, एक परिवार टूटने का एक कारण है, वो कारण क्या है ना, परमेश्वर का बातों को भूल जाता है, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन की आज्ञा पालन नहीं करता है। All right. Now the root cause for that is sin. और वो कारण क्या है, वो सब कारण जो है उसकी पाप है। Brothers and sisters, we know that sin alienates God
from man or man from God. सो मेरे प्यारो, पाप क्या करता है? परमेश्वर से एक मनुष्य को दूर कर देता है और मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। What happened when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden? मेरे प्यारो, जब आदम और हव्वा ने जो एदन वाटिका में पाप किया तो वहां पर क्या हुई? The Lord came to the garden. The Lord reached out to Adam. He called out Adam. What did both of them do? They went and hid behind the trees. सो मेरे प्यारो, उस एदन वाटिका में परमेश्वर आता है, आदम को बुलाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? दोनों जो है परमेश्वर की आवाज को सुन करके एक पेड़ के नीचे व पेड़ के आड़ में वे लोग छुप जाते हैं। Because they sinned, they ran and hid from God's presence. और उन्होंने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर से वो दूर जा करके छुप गए। And see what happened. And then there was a distance between their own relationship between the husband and wife. और देखिए, उस पाप के कारण उस परिवार में भी वो जो है पति और पत्नी के बीच में भी जो है दूरी बन गई। Adam started blaming his wife. You see, he blames his wife to God and say, "This it's because of this woman." और अब देखिए, उन दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप को देख सकते हैं। आदम कहता है, ये औरत की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। Listen to me carefully, brothers and sisters. Sin in a life leads to guilt. सो मेरे प्यारो, एक व्यक्ति का जीवन में पाप हमें जो है उस बुराई के ओर ले जाता है। And guilt, if it's not properly dealt with, will lead to blame. सो मेरे प्यारो, ये जो बुराई यदि सबसे पहले उसका यदि समाधान ना करें तो क्या होता है? ना आपके और मेरे जीवन में जो है सत्यानाश के ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। And then blame leads to anger and alienating from God. That's what we see in the life of Adam and Eve. और ये आरोप और प्रत्यारोप क्या होता है ना, जो है एक बहुत बड़ा परिवार में एक बिछड़ने के विषय व एक दूसरे की दूरी बनाया देता है। And what is the solution for that? और उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? That's what we read in verse 4. और उसी बात को हम लोग चौथा पद में पढ़ सकते हैं। In verse 4 we read, "Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I have given him at Horeb for all Israel." सो प्रभु का वचन ऐसा कहा गया है चौथा पद में कि जो मेरे दास मूसा है, उसकी व्यवस्था, उसकी विधि, उसका नियम को तुम स्मरण रखना, जो विधि और नियम को मैंने जो होरेब पहाड़ पर दिया था। So the Lord is reminding them and saying that from you running away or alienating yourself from me, the solution that he gives is remember. और आप देखें, तुम मेरे से दूर होते जाते हो, इसीलिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन प्रभु देता है वो है याद रखना, बस स्मरण रखना। Yeah, the word remember appears at least 14 times in the book of Deuteronomy. और स्मरण रखने का जो शब्द है, ये शब्द व्यवस्था विवरण में कम से कम 14 बार हम देख सकते हैं। So it's how important it is to remember the word of God. और ये परमेश्वर का वचन को याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। So it doesn't stop with just remembering, but we also have to obey the word as well. सो मेरे प्यारो, हमें स्मरण करना परमेश्वर का वचन इतना ही नहीं, बल्कि उस परमेश्वर का वचन को हमें मान करके आज्ञाकारी होकर के चलना है। Now listen to me very carefully. Here also there is another progression as far as the word of God is concerned. और यहाँ पर एक और प्रगति को देख सकते हैं और इस परमेश्वर का वचन को लेकर के। First of all, we forget God's word. सो मेरे प्यारो, सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं। What do we mean by this? परमेश्वर को भूल जाना, उसका मतलब क्या है? No, परमेश्वर का his word, God's word. परमेश्वर का वचन को भूलना, उसका मतलब क्या है? Yeah. How many of us have read the Bible at least once, the whole Bible at least once?
और आप और मेरे बीच में बा आप लोगों के बीच में बा आप लोग परमेश्वर का वचन को बा संपूर्ण बाइबल को आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार कितने लोगों ने अध्ययन किया है? I hope we have all realized that every time we read, there is something new that comes to us which we did not observe in the previous time we read it, isn't it? यस, तो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं, उस वक्त जितना बार हम लोग उस वचन की ओर आते हैं, ऐसा लगता है नयापन महसूस होती है। अरे ये पद को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा पद भी लिखा है जैसा लगता है। That is, just yes, yes uncle, you are true. Just now Yeah. only I felt like that. Yeah. You see, as we read, what happens, our mind is leaking, our mind is letting go as we read. और जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो मन हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। Sometimes we forget what we read the last time. और पिछले बार हमने जो पढ़ा था उस बातों को भी हम लोग भूल जाते हैं। And what happens is when we forget, that is what leads to disobedience. मेरे प्यारो, ऐसा होता है, हम जब परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं तो वो क्या होता है ना, हमें अनाज्ञाकारिता व परमेश्वर का वचन को अनाज्ञाकारिता के ओर ले जाता है। So the first step is when we forget God's word, it leads to disobeying God's word. सो मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का वचन को हम भूल जाते हैं तो हमें ये क्या करता है ना, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने में हमें आगे की ओर ले जाता The है। Judeans here, where the Lord was speaking through Malachi, they had forgotten the word, and because of which they were disobeying God. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो यहूदा के लोग हैं, वे लोग परमेश्वर का वचन को भूल गए हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं। Listen to me very carefully. They did not know that they were disobeying God. मेरे प्यारो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि वे लोगों को ये नहीं पता था कि परमेश्वर की आज्ञा की वे उल्लंघन कर रहे हैं। Forgotten the word. वे लोग परमेश्वर का वचन को भूल गए हैं And they were experiencing alienation, separation, or moving away from God. और वे लोग अपने जीवन में परमेश्वर से दूर जाने की परिस्थितियों को अनुभव कर रहे हैं। What do we read in Proverbs chapter 19 and verse 3? Proverbs और 19 and verse 3. और नीति वचन उसका 19वां अध्याय और 3रा पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नीति वचन 19वां अध्याय और 3रा पद। Proverbs 19 and 3. 19वें अध्याय और 3रा पद। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। Okay. People ruin their lives by their own foolishness. You read that there? Yes, yes, uncle. Yes. 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 So when they forget the word, they have ruined themselves because they've gone away from God. They've forgotten the word that they have to obey God in this and this areas. और उनकी मूर्खता के कारण ये अपना जीवन को वे लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को पालन करना वे लोग भूल गए हैं। Brothers and sisters, the people in Malachi's time were blind to their own disobedience because they forgot the word. मेरे प्यारो, मलाकी के समय में जो है लोग कैसे थे ना, परमेश्वर का वचन को वे लोग भूल गए थे और उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर से वे लोग दूर होते जा रहे हैं। Listen, they forget the word of God, and second, that leads them to disobedience, and the third is because of these two acts, they are separated from God. They've gone away from God. सो मेरे प्यारो, आप देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले परमेश्वर का वचन को भी भूल गए, दूसरा परमेश्वर का वचन को देखते हैं कि वे लोग जो है परमेश्वर से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। I want you to listen very carefully what I'm going to say now. बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए जो अभी जिस बातों को मैं बोलने जा रहा। We are used to saying the following things. और हम लोग जो है इस जो बातें हैं, इस बातों को हम बोलते ही जाते हैं, हमारे जीवन में बोलते रहते हैं। Everything is fine between the Lord and me.
और हम ऐसा कहते हैं मेरे और परमेश्वर के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। But that wife of mine, no, it's because of her. और ये क्या होता है ना, हमारे जीवन में क्या होता है, समस्या आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पत्नी के कारण। Everything is fine between me and the Lord, but you see those children of mine. और मेरे और जो है प्रभु के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन मेरे बच्चे, देखिए आप, मेरे बच्चों के कारण ऐसा हो रहा है। Everything is fine between me and the Lord, but my parents, the parents of mine, and their interference in my life. और मेरे और परमेश्वर के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन मेरे माता पिता जो है मेरे बीच में आ जाते हैं, वही सबसे बड़ा गड़बड़ है। You see the alienation that starts right from not keeping the word, forgetting the word, moving to disobedience, that moves into alienation and going away from God and our family and God's people. मेरे प्यारो, आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि परिवार जो है परमेश्वर का वचन को भूल जाना, और परमेश्वर का वचन को भूलने के बाद अनाज्ञाकारी आता है, उसी की वजह से जो है परिवार से भी आप जो है अलग होते जा रहे हैं, परमेश्वर से आप अलग होते जा रहे हैं। That's what you read in that verse 6. The fathers turn from when the fathers turn from the word of God, you know what happens in the family? और आप देखिए कि एक पिताजी जो है, एक पिता एक जो है परमेश्वर का वचन से अलग हो जाता है, तो वो परिवार का परिस्थिति क्या होगा? I think there are a lot of men in this group here, a lot of brothers here. So what I'm going to say the next few is very important for me and for all of you. मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है बहुत सारे भाई लोग हैं, तो मैं जो बातों का भी बोलने वाला हूँ वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। When we turn from the word of God, when we don't obey the word of God, when we don't listen to what God has to say, we alienate from our children. That's what the verse 6 talks about. मेरे प्यारो, जब आप देखते हैं कि आप परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी होकर के उसके वचन को पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से भी आप दूर हो जाते हैं। Christian fathers get angry with their children. There's nothing wrong in that. और मसीही जो परिवार में माता पिता जो है अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। But be careful, when such fathers get angry, they treat their children like in the army, a sergeant treats the soldier. और मसीह परिवार में भी ऐसा होता है, जब गुस्सा आ जाता है तो जो है एक सेना में, जैसे कि एक सेनाध्यक्ष अपनी सेना के साथ जिस तरीके से व्यवहार करता है, ऐसे ही बच्चों के साथ भी अपने माता पिता व्यवहार करते हैं। The fathers, the Christian fathers started yelling and barking orders like how it is done in the defense. They are barking orders against their children. और बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि जो सेना में ऑर्डर दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, ऐसे ही बच्चों के बीच में बहुत जोर से चिल्ला करके आज्ञा देते हैं। Sometimes these Christian fathers turn as if when they're correcting, their intention is to correct, but they lose control of their anger and they sound like they're correcting the dogs. और ऐसा होता है, मसीही पिताजी लोग जो है वो तो सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन सुधारते सुधारते जैसे कि जानवर को व्यवहार करते हैं, मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करता, जानवरों को जैसे कि हम लोग फटकार लगाते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों को जो है ऐसे ही हम लोग डांटते हैं। Brothers and sisters, when I say that I'm not an exception, I'm not just sitting behind the microphone and speaking. I have gone through it. I've corrected myself on this ground of that experience is why I'm sharing these thoughts. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब इस बातों को कहता हूं, मैं जो है जो माइक के पीछे रह करके मैं इसमें इनोसेंट नहीं हूं, मैं भी उस अनुभव से गुजरा हूं, इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। Fathers have to bring their anger under the control of the Holy Spirit. माता पिता व पिताजी लोग जो है अपने गुस्सों को पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति में नियंत्रण में लाना है। Fathers must humble themselves before their children if they've done a sin, if they've done something wrong, by asking forgiveness to the children. There is nothing wrong in that.
और यदि आपने या पिताजी लोगों ने कोई गलती किया है, बच्चों को माफी मांगिए। माफी मांगने से कोई बुराई नहीं है। These are very, very important in the life of a Christian father. मेरे प्यारो, ये जो विषय है एक मसीह परिवार में बहुत मायने और महत्व रखता है। And so, when this kind of alienation from God sits in the family, how to correct it, how to reverse that situation? और ऐसे एक मसीह परिवार में जब हम बिछड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, कैसे फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं। Now, the way to reconcile is by two things: remembering and obeying God's word. और मेल मिलाप और जो है रिश्ते में फिर से जुड़ना है, तो दो चीजों से जुड़ सकता है। वो है याद रखना व याद करना और आज्ञा को पालन करना। Brothers and sisters, the entire Bible, all the 66 books deals with relationship. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल है, 66 पुस्तक है, ये जो है संपर्क व सहभागिता को लेकर के ही बताया गया है। The Bible talks about two things: how we relate to God, number one, and how we relate to men. It is on these two great commandments that all the rest of the commandments hinge upon, is it not? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर का वचन दो विषय को ऊपर जो है आधारित है। सबसे पहले तो हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, और उसके साथ साथ हमारे जो मनुष्य है व भाई और बहन है, उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। ये जो आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा, इन दोनों आज्ञा के ऊपर टिका हुआ है। To reconcile our relationship, brothers and sisters in the family, we need to do the following. I will say a few points and I will close with that. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और बार यदि मेल मिलाप की ओर जाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इन सब विषय को आपको और मेरे जीवन में पालन करने की आवश्यकता है। If there is a situation in our life that we have separated from God because of the family, because of the father who has distanced himself from the child, the way we need to reconcile is the following, which I'm going to place before all of us. सो मेरे प्यारो, एक माता पिता परमेश्वर से यदि अलग हो गया है, अपने बच्चों से यदि अलग हो गया है, या फिर अपना परिवार से यदि अलग हो गया है, तो कुछ बातों को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। उन बातों को आपको और मुझे स्मरण रखना है। First of all, we need to remember God's word. सबसे पहला विषय है, हमें परमेश्वर का वचन को स्मरण करना है। We can't remember the word if we have not diligently, carefully read the word. मेरे प्यारो, आप और मैं उस वचन को व परमेश्वर का वचन को स्मरण नहीं कर सकते यदि आप और मैं बहुत ध्यान और गहराई के साथ उस वचन को अध्ययन नहीं किया है। Let me say this once again. We can only remember the word, brothers and sisters, if we carefully have read the word. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन को आप और मैं स्मरण जब कर सकते हैं, तब जब जो है परमेश्वर का वचन को बहुत गहराई से हम अध्ययन किया है तो। And we can only remember what you already know. You cannot remember something that you don't know, is it not? और जिस बातों को आप जानते ही नहीं, उस बातों को क्या आप स्मरण कर सकते हैं? जिस बात को आप जानते हैं, Yeah. तो वही बात को ही आप स्मरण कर सकते हैं कि नहीं? Absolutely. Now, there are two kinds of laws, brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो व्यवस्थाएं हैं, दो नियम हैं। One is man-made laws. और सबसे पहला नियम जो मनुष्य द्वारा बनाया गया The है, second is the natural law. और दूसरा है जो प्राकृतिक नियम है। The man-made laws are like the road rules, the parking rules, the parking ordinances, all these things. Some example again. और मनुष्य द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो रास्ते में कैसे चलें और फिर बाद में कहां पर हमारा गाड़ी को पार्किंग करें, ये सब ऐसा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। The natural laws are when you put your finger in the fire, it will burn. That's a natural law. और जो प्राकृतिक नियम ये है कि आपका उंगली को यदि आग में डाल देंगे तो क्या होता है, आपका उंगली जल जाएगा। ये है प्राकृतिक नियम। Yeah, so brothers and sisters, the law of God is like a natural law. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की नियम है, व्यवस्था है, वो एक प्राकृतिक नियम के समान है।
breaking God's law has natural consequences. मेरे प्यारो, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना क्या होता है, न प्राकृतिक रूप से जो प्रतिफल मिलती है वैसे ही प्रतिफल जरूर मिलेगा। Remember God's word, and when you remember God's word, you will apply that in your life and follow it and stay away from disobeying Him. सो मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का वचन को आप जानते हैं तो उस वचन को आप स्मरण कर सकते हैं और जो पाप और अनाज्ञाकारिता से आप दूर रह सकते हैं। So to remember, what should we do? और परमेश्वर का वचन को याद व स्मरण रखने के लिए हमें क्या करना होगा? We should read and keep on reading. मेरे प्यारो, इसीलिए हमें परमेश्वर को वचन को पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। And also memorize as many verses as possible. सो मेरे प्यारो, हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को हमें याद करना है। जितना वचन हम याद कर सकते हैं उतने वचन को हमें जो है कंठस्थ करना है व स्मरण करना है। Listen to me carefully. You will only remember and obey what we already know. एक और बार आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो बातें हम लोग जानते हैं वही बात को ही हम स्मरण कर सकते हैं। And sometimes we say, I don't remember the word. I've read the word. I read just this morning. But now you ask them in the afternoon or in the evening what you read. Oh, I don't remember that. कभी कभार ऐसा होता है, आज दोपहर को ही मैंने उस पद को पढ़ा था, उस वचन को पढ़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या मैंने पढ़ा था। Some people say, I've got a bad memory. उससे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मेरी जो है बुरी एक आदत है कि मैं याद नहीं कर पाता। Brothers and sisters, that is an incorrect statement. मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक गलत जो है स्टेटमेंट है, गलत बातें हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। Unless you suffer from an Alzheimer's disease where the memory fails a person, you can never forget what you read carefully. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई बीमार से आप जब तक नहीं गुजरते तब तक जो है जिस बात को आप ध्यान से यदि पढ़े हैं उस बातों को आप भूल नहीं सकते। The main reason we forget God's word is because we don't apply our mind and we don't think it is important for our survival, is it not? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन को हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस विषय को महत्व ही नहीं देते और हमारे जीवन में हम जो है उसको लागू नहीं करते हैं। The Bible holds answers to all life's issues and problems. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में हमारे जो व्यवहारिक जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान परमेश्वर का वचन में हम पा सकते The हैं। Bible teaches us how to know God. परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। The word of God teaches us how to walk with God. और परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है हमें किस तरीके से परमेश्वर की राहों पर चलना चाहिए। The word of God teaches us how to love our neighbor. और परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है हमारा पड़ोसी को हमें कैसे प्रेम करना चाहिए। The second thing is, one is to remember that. The first thing that we saw now. The second is what we remember, we need to obey God's word. और मेरे प्यारो, दूसरी बात यह है, जिस बातों को हमने स्मरण रखा है, उन बातों को, उन विषय को, उन वचनों को हमें आज्ञाकारी होना है। God's word contains commandments. परमेश्वर का वचन आज्ञाओं से परिपूर्ण है। And quite often God's word is confrontational, which means God's word corrects us, isn't it? What do we read in 2 Timothy 3:16? It's a familiar verse. Can we read that? 2 Timothy 3:16. और जो है परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। और दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और 16वां पद एक बहुत ही जाने पहचाने पद हैं। आइए हम लोग उस पद को भी पढ़ लेते हैं। 3:16, 2 Timothy. दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय 16 पद, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So when you read the word of God, the word of God tells you, listen, this is where you made a mistake. This is where you've gone wrong. This is where you sinned. And immediately we use 1 John 1:9, confess it, and then we move forward. That is
That is the confrontational character of God's word. सो मेरे प्यारो, जब आप अपना जीवन में परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को उल्लंघन करके बैठे हुए रहते हैं, जब परमेश्वर का वचन को आप पढ़ते हैं, उसी वक्त ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और उस गलतियों को आप सुधार सकते हैं। उस गलतियों को सुधार करके जो है तुरंत ही पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां पद के अनुसार आपका जीवन को सुधार सकते हैं। प्रभु मुझे माफ करना, और एक नए सिरे से सुधार करके अपना जीवन को व्यतीत कर And सकते हैं। so the third aspect of family reconciliation is when it will result from obedience. First मेरे is, प्यारो, yeah, एक परिवार में मेल मिलाप जब आ सकता है, वो क्या है ना, एक आज्ञाकारिता का परिणाम से ही परिवार में मेल मिलाप आ सकता and है। the true sign of conversion in a family is where the sons and the fathers are reconciled one to another. और मेरे प्यारो, एक जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कब आता है ना, माता और पिता और जो है बच्चे और माता पिता के बीच में जब जो है मेल मिलाप होता है, तभी ही एक परिवार में परिवर्तन आता है। The sisters in the group or brothers may be wondering why it is only about fathers mentioned in verse 6. और बच्चे और कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे क्यों पिता के विषय में ही लिखा गया है। Because fathers need to be very, very careful. और क्यों लिखा गया है? क्योंकि पिताओं को जो है बहुत ही अपने जीवन में ध्यान रखने की The आवश्यकता tendency है। the tendency of the fathers is to leave the grooming to their wives, grooming of the children to their wives. सो मेरे प्यारो, जो पिताओं का कर्तव्य ये रहता है कि अपने जो पत्नी और बच्चों को किस तरीके से उनको बढ़ाने का जिम्मेदारी रहती है। They pass it on to their wives. और वो क्या होता है ना, अपनी पत्नियों को वे जो है पास कर देते हैं, व दे देते हैं। That's because the fathers are engaged in their jobs, in their ministries, and quite often they're so engrossed in the work and the ministries, they neglect the bringing up of the children, and then they assume that the wife will take care of bringing up the children. That is why the fathers are mentioned in this verse. सो मेरे प्यारो, पिताओं के विषय में क्यों यहाँ पर बताई गई है? इसीलिए क्योंकि जो पिताएं हैं बहुत सारे कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मम्मी व माताएं हैं वो लोग बच्चों का ध्यान रख लेंगे, ये सोच करके अपने बच्चों को पिता लोग जो है ध्यान नहीं देते। इसीलिए यहाँ पर पिताओं को जो है चिताया गया है। Fathers cannot be passive, they have to be active. मेरे प्यारो, जो है पिता लोग जो है क्या है ना, पैसिव हो करके बा जो है नकारात्मक तरीके से अपने जीवन को नहीं रह सकते, अचल हो करके नहीं रह सकते। The meaning of passive is when someone is smoking, they say active smokers. The one who's smoking is active, but a passive smoker is the one who's standing nearby. He is not smoking, but he inhales the smoke. He's called passive. और मेरे प्यारो, एक पैसिव का अर्थ ये है अचल होकर के रहना, सब कुछ देखते रहना, सुनते रहना और जो है अनुभव करते रहना, फिर भी उसका प्रतिक्रिया नहीं देना, उस व्यक्ति को पैसिव कहते हैं। All right, so which means the fathers have to be active and not to be passive. और मेरे प्यारो, पिताओं को जो है एक्टिव होकर के सक्रिय होकर के रहने की आवश्यकता है, ना कि असक्रिय होकर के रहना। That is why it is verse 6 talks about the fathers. और इसीलिए 6वां पद में जो है पिताओं के विषय में कहा गया। And finally, for a family to be totally reconciled and in the will of God, obeying God's word, remembering God's word, and then obeying God's word will turn the hearts of the family to God's love. And that is ultimately what the Lord was telling the Judeans through the prophet Malachi. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं जो है सबसे पहले परमेश्वर का वचन को पालन करना। परमेश्वर का वचन को जब हम लोग पालन करेंगे तो एक परिवार क्या होता है ना, एक यहूदी परिवार क्या होता है ना, वो परमेश्वर का प्रेम में जो है आ जाता है, एक परिवार प्रेम में जो है तब्दील हो जाता है। यही पद जो है उस यहूदियों का परिवार को कहा गया है। I hope the word has been useful to me as much as it has been useful to you, all of you, as much as it has been useful to me, brothers and sisters. प्यारे भाई और बहनों, जितना ही ये परमेश्वर का वचन
मेरे लिए लाभदायक हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये लाभदायक जरूर हुआ होगा। Don't stop with this. Meditate in your houses. When you get the notes, review it, meditate it. The Holy Spirit will speak to you even more than what I could explain. The Holy Spirit will explain it to you better to help you follow it. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर ही आप जो है परमेश्वर का वचन को पढ़ना बंद मत कर देना। मैंने जितना अध्ययन करके पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने आप लोगों को बताया है, आप इस वचन को और ध्यान करिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में और भी जो है बताएंगे, कार्य करेंगे। God bless you all and thank you very much, Sibir. Thank you very much for the wonderful